that this Advent season we have been looking at the prophecy of prophet Isaiah in the Old Testament. हम इन दिनों में आगमन के सीजन में हम यशाया नबी की नबूवत से देख रहे हैं And particularly the names that Isaiah gives to the coming Messiah. खास तौर से वो नाम जो आने वाले मसीहा के लिए दिए गए And these 4 names have been wonderful as we studied them in the past 3 weeks. और पिछले 3 हफ्तों में जो हमने ये इन नामों के विषय में पढ़ा इससे हमको बहुत आशीष मिली है And today in part 4 of this Advent 2024 series, और आज जो हमारा चौथा भाग है इस 2024 के आगमन के सीजन में we will look at the 4th name, हम चौथे नाम पे जाएंगे that is the Prince of Peace. और जो नाम दिया गया वो है शांति का राजकुमार This name is like our other 3 names, और ये जो पहले के 3 नाम हैं उनसे मिलता जुलता है is very significant बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है and fulfills not only Isaiah's prophecies ना केवल ये यशाया की भविष्यवाणी को पूरा करता है but several other prophecies about peace and the Messiah in the Old Testament. परंतु और जो भविष्यवाणियां की गई हैं पुराने नियम में शांति के ऊपर वो भी पूर्ण हुई Let's read this scripture once again. आइए हम पवित्र शास्त्र में से फिर से पढ़ेंगे Found in the book of Isaiah, chapter 9, verses 1 through 7. Anybody wants to help us read Isaiah 9, 1 through 7? कोई पढ़ना चाहेगा हमारे साथ यशाया 9 1 से 7 Amen. May the Lord add his blessings to the reading and hearing of his powerful word. परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुनने जाने पे आशीष दे So, prophet Isaiah, about 700 years before the birth of Jesus Christ, और यशाया नबी प्रभु यीशु मसीह के जन्म से करीब 700 वर्ष पहले was given this vision of a messianic figure उनको एक ये दर्शन में ये भविष्यवाणी के द्वारा ये शब्द मिला एक मसीहा के विषय में that this messianic figure will be somewhere in the future और ये जो मसीहा होगा ये भविष्य में किसी समय में होगा who will have divine qualities जिसके अंदर दैवीय गुण होंगे and yet he will enter human history like a baby. फिर भी वो एक जो मनुष्य के जो इतिहास है उसमें एक छोटे बच्चे के द्वारा आएगा And with the coming of this Messiah born as a man, और ये जो आने वाले मसीहा के विषय में है जो एक मनुष्य की तरह उत्पन्न होगा he will be ushering in peace, prosperity and righteousness, and his rule will have no end. और जब वो आएंगे जब ये बच्चा पैदा होगा तो उसके द्वारा शांति धार्मिकता आएगी और उसके राज्य का कोई अंत ना होगा So let's look at the names given by Isaiah the prophet for this coming Messiah once again. आइए हम फिर से उन नामों के विषय में देखें जो यशाया के द्वारा दिए गए इस आने वाले मसीहा के विषय में For a child has been born for us, कि एक हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ a son given to us, हमें एक पुत्र दिया गया है authority rests upon his shoulders, प्रभुता उसके कंधे पर होगी and he is named और उसका नाम होगा Wonderful Counselor, Mighty God, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर Everlasting Father. अनंत काल का पिता We have looked at all these 3 titles in the past 3 weeks. पिछले 3 हफ्तों में हमने इन 3 शीर्षकों को देख चुके हैं And today, the 4th word he uses is, he will be the Prince of Peace. और आज जो हम चौथा शीर्षक देखेंगे वो है यीशु के लिए जो वो शांति का राजकुमार He होगा will not just be a prince. वो न केवल एक राजकुमार होगा In order to rule as a king, he has to be born as a prince. क्योंकि उसको राज करना है राजा की तरह तो उसको पैदा होना है एक राजकुमार की But he तरह will be the Prince of Peace. लेकिन वो तो होगा राजकुमार शांति का राजकुमार He shall be born as a child, वो एक बच्चे की तरह उत्पन्न होगा born as somebody who is very
dependent on others, वो एक ऐसे बच्चे की तरह होगा जो दूसरों के ऊपर निर्भर होगा, but he will also be raised to be the king of this earth. लेकिन जब वो बड़ा होगा तो वो इस पृथ्वी का राजा भी होगा. So, the Prince of Peace that Isaiah talks about, और जिस शांति के राजकुमार के विषय में यशायाह नबी बात करते हैं, that prophecy is not just found in the book of Isaiah. ये भविष्यवाणी केवल यशायाह की पुस्तक में नहीं पाई जाती In है, fact, quite early in the Old Testament, बल्कि काफी पहले पुराने नियम में all other prophets also had prophesied about the same thing. और भी दूसरे भविष्यवक्ता हैं जिन्होंने इसी तरह की भविष्यवाणी भी की है. If you go back a little up in that chapter that we are in from Isaiah, chapter 9, और यदि आप उसमें थोड़ा ऊपर जाएंगे यशायाह नबी की पुस्तक के 9वें अध्याय में, all these 4 titles are in chapter 9 and verse 6. और ये सारे शीर्षक यशायाह नबी की पुस्तक में 9 अध्याय की 6ठी आयत में है. But if you look at chapter 9 and verse 5, यदि आप उसकी 5वें आयत में देखें यशायाह 9:5 में, it says, "For every boot of the tramping warrior in battle tumult, and every garment rolled in blood will be burned as fuel for the fire." और 9:5 में यूं लिखा है, क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते और लहू में लथड़े हुए कपड़े सब आग का कौर हो जाएंगे. In wars we have battles, और जब युद्ध होते हैं तो उनमें छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती हैं, and when soldiers are prepared for the battle, और जब सैनिकों को तैयार किया जाता है लड़ाइयों के लिए, they have to put on this special armor on their body. तो उनको अपने शरीर पर ये खास तौर के आर्मर्स पहनने होते हैं. And in every battle you will see blood. और हर एक लड़ाई में आप खून खराबा देखेंगे. Isaiah said, before he prophesied about the coming Messiah, he said, this is also part of the prophecy in verse 5. और यशायाह नबी जब ये प्रभु यीशु मसीह के लिए नाम देते हैं भविष्यवाणी में, उससे पहले वो ये भी भविष्यवाणी करते हैं कि उस समय के ऐसे युद्ध भी होंगे और ऐसा समय भी आएगा. And he says that every war-like equipment, everything that is related to the war, और वो कहते हैं 5वीं आयत में कि जो कुछ भी जुड़ा हुआ है युद्ध से, all the trappings of war and blood and violence, all will be destroyed in this coming kingdom. और वो कहते हैं ये जो सारा खून खराबा है और जो ये सब बातें हैं युद्ध की, ये सब इस राज्य के द्वारा खत्म कर दिया Because जाएगा. when the Prince of Peace comes, क्योंकि जब ये शांति का राजकुमार आएगा, there will not be any need for any battle or any war. तो जब ये शांति का राजकुमार आएगा तो युद्ध और लड़ाई की तो आवश्यकता ही नहीं है. This is one of the most exciting and messianic promises that is given to us in the Old Testament. और ये बहुत ही अद्भुत और सुंदर और हमें उत्तेजित करने वाली एक भविष्यवाणी है जो पुराने नियम में दी गई है. That they will all be burned as fuel for the fire. There will not be any need for one people to conquer other people, for one people to take other people's lands and their properties. और जो उत्तेजित करने वाली बात है वो ये है कि जो भी युद्ध की बातें हैं, जो भी खून खराबे की बातें हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई की बातें हैं, वो सब खत्म हो जाएंगी क्योंकि हमारे लिए शांति का राजकुमार आएगा. But this prophecy is not just confined to prophet Isaiah. पर ये जो भविष्यवाणी है ये केवल यशायाह नबी के द्वारा ही नहीं की If गई. you go back to the beginning of the book of Genesis and chapter 49, और यदि आप और पीछे जाएं पुराने नियम में उत्पत्ति की पुस्तक में उसके 49 अध्याय में, you remember Jacob? तो आपको याद होगा यूसुफ, How many sons did he have? कितने बच्चे थे उनके पास? 12. 12, yes. So in his blessing in chapter 49, he blesses his sons. और 49 अध्याय में उत्पत्ति के जोसेफ जो है वो जेकब
Jacob is blessing his son in chapter 49 of the book of Genesis. और याकूब जो है वो अपने 12 पुत्रों को आशीष दे रहा है उत्पत्ति 49 में। When he comes to Judah in verse 10, और जब वो यहूदा के पास आते हैं 10वीं आयत में, he says the scepter, which means the staff that the kings used to carry, which symbolizes authority and power. तो जब वो यहूदा के पास आते हैं तो वो राजदंड की बात करते हैं। It is the mark of the royal power that every king used to carry. और जब यहूदा की बात करते हैं तो वो एक राजा के बारे में बात करते हैं जो जैसे राजा हर एक प्रकार से राजदंड को संभालते And हैं। he says the scepter, the power and authority, the royal authority, और वो कहते हैं कि राजदंड और जो राजकीय जो अधिकार होगा shall not depart from Judah, वो कहते हैं यहूदा से कभी अलग नहीं होगा। nor the ruler's staff. It's a parallelism referring to the same scepter. Not the ruler's, nor the ruler's staff from between his feet. और वो कहते हैं जब तक शीलो ना आए तब तक ना तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, ना उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। If you look at the pictures of the old kings, यदि आप पुराने राजाओं की तस्वीरों को देखेंगे, when they sit on their throne, जब वो अपने राजगद्दी पर बैठते हैं, they have this scepter in their right hand, तो उनके दाहिने हाथ में एक राजदंड होता है, and it is placed as they are seated on the throne between their knees. और वो उनके घुटनों के मध्य में होता है जब वो बैठे होते हैं। And that is the picture Jacob had in his prophecy to the tribe of Judah. और यही वो आशीष जो याकूब अब देते हैं वो यहूदा के भाग में है। And he says further, and to him, that is the king of Judah, और वो कहते हैं ये जो राजा होगा यहूदा, shall be the obedience of the peoples. Verse, last sentence of that verse 10. और उसमें लिखते हैं कि वो राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। Yeah, so that is a picture, a prophetic picture that he was having, Jacob was having about the king of Judah. And remember, where does Jesus come from? और यही एक तस्वीर याकूब के दिमाग में होती है जब वो यहूदा के राजा के लिए बोलते हैं, और आपको मालूम है कि यीशु किस गोत्र से आए हैं। Do you have this verse in King James Version? Can you read that? Genesis 49 and verse 10. It's a very difficult verse to translate. So many different translations don't get it right. कोई किंग जेम्स वर्जन से पढ़ेगा अनुवाद से हमारे लिए? Yeah, that word Shiloh is very, very significant but very difficult to understand and translate. But in the original versions that you have the word Shiloh. और ये जो शब्द शीलो है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पर। It means the seed. इसका मतलब है ये जो बीज है, Or it means the peaceable and the prosperous one until that person comes. और वो कहते हैं ये वो जो शांति देने वाला और जो धन संपदा देने वाला है ये राजा होगा। And until that throne, which actually belongs to him, until he comes, there will be all these things. But when he comes, then there will be obedience of all the nations unto him. और जब तक शीलो ना आए तब तक ना तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, ना उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा। This Shiloh is one of the titles of the Messiah that as early as Jacob, the Holy Spirit revealed to him. और ये जो शीलो शब्द है ये भविष्यवाणी है जो याकूब ने उत्पत्ति में हमको दी है। Several other prophets later in the Old Testament had a similar vision of the coming Messiah. और दूसरे भविष्यवक्ता भी हैं जो जिनको ऐसा ही समान दर्शन मिला आने वाले मसीहा के So विषय में। what basically Jacob and the other prophets were saying, और जो याकूब और दूसरे भविष्यवक्ता जो कह रहे हैं that the rule of Judah, कि जो राज्य होगा यहूदा का, the kingship of Judah,
और जो यहूदा का राजा होगा actually belongs to the Messiah. वो तो एक मसीहा के को बिलोंग करता है। Remember, in the book of Revelation, he's called the Lion of Judah. और आपको याद होगा कि प्रकाशित वाक्य में नए नियम में उनको लायन ऑफ जूडा बोला He गया। comes from the tribe of Judah, one of the tribes of the sons of Jacob. और ये जो गोत्र है वो याकूब के 12 में से एक गोत्र है। So Judah will always have a descendant on the throne. और जो यहूदा है उनका जो डिसेंडेंट होगा वो राज करेगा Until जब तक it is the power and the authority and the royalness that comes with it. जब तक कि जो उसका सारा वैभव है और उसका जो सारा राज के बातें हैं Is not given to Shiloh, जब तक वो शीलो को ना दी जाए, who is the rightful owner, or who all this belongs. जो सही में उसका ओनर है और जिसकी सब कुछ ये बातें हैं। And then when he comes, और जब वो आएगा he'll bring peace, वो शांति लाएगा। and he will do that by the obedience of the people, not by war or battle or by colonization or by taking away other people's lands and properties. और वो कैसे होगा? ना युद्ध और लड़ाइयों से नहीं कि जबरदस्ती उनके ऊपर राज्य करने के द्वारा नहीं, लेकिन शांति के द्वारा। So further we have these prophecies और आगे हम और देखेंगे कि ऐसी और भविष्यवाणियां हैं describing about peace and the cessation of war, जो हमको शांति के विषय में बताती हैं और लड़ाई झगड़े के रुक जाने के बारे में बताती हैं। For example, in Malachi, और उदाहरण के लिए मलाकी में हम देखेंगे and chapter 4 and verse 1. उसके 4थे अध्याय की पहली आयत में हम देखेंगे। Can anybody take out Malachi chapter 4 and verse 1? कोई मेहरबानी से निकाल सकता है मलाकी 4:1? And this verse read, और ये जो आयत है ये इस प्रकार से है, For behold, और देखो the day is coming, वो दिन आता है burning like an oven, धधकते भट्टे की तरह, when all the arrogant and all evildoers will be stubble. जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे। That means it will be cut off, and what remains when you harvest wheat or barley is the stubble. और इसका मतलब ये है कि जब सब कुछ जल जाता है धान में से, तो उसमें अनाज बचता है। The day that is coming और जो दिन आ रहा है shall set them ablaze, says the Lord of hosts, so that it will leave them neither root nor branch. और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक नहीं रहेगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। So this Malachi, the prophet Malachi was prophesying about the day of the Lord. और मलाकी भविष्यवाणी करते हैं, मलाकी भविष्यवक्ता इस बात की भविष्यवाणी करते हैं जो यहोवा का दिन है परमेश्वर का। He also says about the judgment by fire. और वो न्याय की बात करते हैं जो आग की द्वारा होगा। And the words like oven and furnace and ablaze, all of these, they show us the intensity of the judgment day or the day that is coming. और जो ये धधकते भट्टे की और आग की जो बात है, ये हमको उस बात की याद दिलाता है जो आने वाला दिन है न्याय का। So this judgment day, according to Malachi, will be because of the Lord Jesus Christ, the Messiah. और जो मलाकी भविष्यवक्ता है वो उनको जो न्याय की बात करते हैं वो इसलिए क्योंकि वो भविष्यवाणी कर रहे हैं यीशु मसीह की जो मसीहा के रूप में आ रहे हैं। This does not mean that everything will be annihilated. इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। But that simply means the evildoers and the arrogant will be removed, and later on the peace and the Prince of Peace will rule with his scepter. और इसका मतलब ये है कि जो अभिमानी लोग हैं, जो दुष्चारी लोग हैं, दुराचारी लोग हैं, वो खत्म कर दिए जाएंगे क्योंकि प्रभु यीशु मसीह राजदंड के साथ एक राजा की तरह आ रहे हैं। Hosea chapter 2 and verse 18 had a similar prophecy. और फिर हम होशे भविष्यवक्ता के बारे में देखेंगे 2 अध्याय की 18 आयत में, उनके पास भी कुछ समान भविष्यवाणी है। Hosea said, और होशे कहते हैं, I will make for them a covenant on that day
with the beasts of the field, the birds of the heavens, and the creeping things of the ground. And listen to this: I will abolish the bow, the sword, and war from the land, and I will make you lie down in safety. और होशे 2:18 में इस प्रकार लिखा है, उस समय मैं उनके लिए वन पशुओं और आकाश के पक्षियों और भूमि पर के रेंगने वाले जंतुओं के साथ वाचा बांधूंगा और धनुष और तलवार तोड़कर युद्ध को उनके देश से दूर कर दूंगा और ऐसा करूंगा कि वे लोग निडर सोया करेंगे. So this vision of a peaceful, safe place on this earth और ये जो एक दर्शन है इस भविष्यवाणी में, एक बहुत ही शांतिपूर्ण, एक बहुत अच्छी जगह के विषय में बताते हैं इस दुनिया में, that beginning with Jacob, जो कि शुरू होती है याकूब से. many prophets of Israel saw जो बहुत से भविष्यवक्ता हैं इस्राएल के, उन्होंने भी देखा ये दर्शन and prophesied, और भविष्यवाणी की उसको लेकर, was ultimately fulfilled जो बाद में जाके संपूर्ण हुई in the Messiah, प्रभु यीशु मसीहा में, who is called the Prince of Peace. जिनको शांति का राजकुमार कहा गया. But this peace that he brings परंतु ये जो शांति वो लाते हैं is holistic peace, my dear friends. मेरे मित्रों, ये संपूर्ण एक पूर्ण जो शांति है वो है. It is not just the absence of war and battle, ये केवल लड़ाई झगड़े का, युद्ध की कमी नहीं है, but it means something deeper and more meaningful. लेकिन ये और भी ज्यादा गहरा और अर्थपूर्ण बात है. The word used in the Hebrew language is shalom, और इब्रानी भाषा में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है शांति के लिए वो है शालोम. because shalom means also the Persian word or the Urdu word that we use even to this day for greetings. जो हम उर्दू में और पर्शियन लैंग्वेज में भी आज इस्तेमाल करते हैं. Salem or shalom or salam. वो सालेम की तरह, शालोम की तरह हम सलाम भी बोलते हैं. And it means complete. जिसका मतलब है पूर्ण होना. It means whole. उसका मतलब है पूर्ण, पूरा. He will be the prince of not only peace but also prosperity of all kinds. केवल शांति की बात नहीं है, लेकिन हर प्रकार से धन संपन्नता और जो भी प्रॉस्पेरिटी है. Because peace in the Hebrew word implies क्योंकि इब्रानी भाषा में शांति का अर्थ है prosperity as well as tranquility, शांति, असीम शांति और धन संपन्नता, in which you don't lack anything. जिसमें आप कुछ भी नहीं आने You देते. have everything that can be imagined. आपको कोई कमी नहीं होगी और जो भी आप कल्पना कर सकते हैं वो उसमें होगा पूर्ण. it means you are complete, you are wholesome. इसका मतलब है कि आप पूर्ण हैं. So the peace that Jesus Christ, the Prince of Peace, will bring, और जो शांति जो प्रभु यीशु मसीहा है, जब वो लाएंगे, it means that he is the giver of all sorts of blessings in our lives and to this earth. इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह है जो हर एक आशीष के देने वाले हैं जिसकी हमको इस पृथ्वी पर जरूरत है. And this Prince of Peace, और ये जो शांति का राजकुमार है, of course, will establish peace first of all with God. और उनका जो सबसे पहला उद्देश्य है वो परमेश्वर के साथ शांति लाना. But he doesn't stop there. लेकिन वही नहीं रुक It's जाते हैं. not just for our salvation that he comes, that our souls will be united with God. और ये केवल इसलिए नहीं है कि हमारा उद्धार हो जाएगा और हमारी आत्मा जो वो परमेश्वर के साथ मिल जाएगी. But he also will be the one who will make peace between men and men, women and men, and women and women. और इसका मतलब ये भी है कि वो पुरुष और पुरुष और पुरुष और स्त्री के साथ भी और स्त्री के बीच में भी प्यार देंगे. And it will be not through war, वो लड़ाई झगड़े के द्वारा नहीं, but it will be through the gospel. It will be through the good news that he brings to the people with his birth. और उनके आने के द्वारा, उनके जन्म के द्वारा शांति, अमन और सुसमाचार का प्रचार भी होगा. Remember the message that the angels heard the shepherds heard as they were the first to visit Jesus and worship him. आपको याद होगा
चरवाहों ने जिन्होंने सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को का दर्शन किया, जब उनको संदेश मिला था, The angels told the shepherds, और दूतों ने स्वर्गदूत ने और दूसरे दूतों ने चरवाहों से बोला this message कि जो संदेश है will be about peace on earth ये होगा शांति जो पृथ्वी पर हमें मिलेगी, and goodwill toward men and women. और हर एक भली इच्छा मनुष्य और पुरुष और स्त्री के बीच में, until we are reconciled at peace with God. जब तक हम परमेश्वर के साथ, हमारे शांति के साथ हमारा रिश्ता नाता ना हो जाए Through Jesus Christ, यीशु के द्वारा, we will never have harmony or peace and goodwill among men and women. बिना यीशु के प्यार और एक दूसरे के प्रति इज्जत हमारे बीच में नहीं आ सकती. See, Jesus Christ, whenever we see him with his disciples, जब भी हम यीशु को उनके शिष्यों के साथ देखते हैं, he used this word with them all the time. प्रभु यीशु मसीह हमेशा इस शब्द का अपने शिष्यों के साथ इस्तेमाल करते हैं. When he was last time with his disciples, he said, जब वो अंतिम समय में अपने शिष्यों के साथ थे, उन्होंने कहा, peace I leave with you, shalom I leave with you. मैं अपनी शांति शालोम तुम्हारे साथ छोड़ता हूँ. My peace I leave with you. मेरी शांति मैं तुम्हारे साथ छोड़ता हूँ. And his benediction was this: peace, 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 shalom, prosperity, well-being of this earth and among you. और जो उनका हमेशा अंतिम जो उनके शब्द होते थे शिष्यों के साथ, वो होते थे तुम्हारे साथ शांति, अमन और सब कुछ बना रहे. So whenever he left his disciples, he said, peace be to you. Whenever he appeared among his disciples, he said, shalom to you. और जब भी यीशु अपने शिष्यों के साथ मिलते थे और जब उनको छोड़ते थे, तो वो उनसे शालोम और शांति की बातें बोलते थे, और जब वो मुलाकात करते थे तब भी उनके साथ शांति का संदेश देते थे. And so it means the whole well-being of his people. That is the meaning of holistic peace that the Prince of Peace brings. और इसका मतलब ये है कि जो संपूर्ण शांति प्रभु यीशु मसीह देते हैं, वो सभी लोगों के मध्य में आपस में एक दूसरे के प्रति और उनमें संपूर्णता मिले. He will restore all sorts of relationships that are broken on this earth. और इस पृथ्वी पर जो भी टूटे रिश्ते हैं, प्रभु यीशु मसीह उनको मिला देंगे, जोड़ देंगे. The very creation that he created as perfect, और जो सिद्ध प्रभु यीशु मसीह ने सृष्टि बनाई, which has been crying because we destroyed it, और जिसका जो विलाप कर रही है क्योंकि हमने इस पृथ्वी को नाश किया है, that relationship and harmony shall also be restored on this earth when the Prince of Peace comes to establish his kingdom. और प्रभु यीशु मसीह के आने के द्वारा जब वो अपने राज्य को स्थापित करेंगे इस पृथ्वी पर, तो वो इसको भी पृथ्वी को भी संपूर्ण बनाएंगे. That is the meaning of Jesus being the Prince of Peace for you and me, my dear friends. मेरे मित्रों, यही तो अर्थ है प्रभु यीशु मसीह का कि वो हमारे लिए शांति के राजकुमार बन के आए. Second thing we learn about the Messiah's peace, और जो दूसरी बात हम इस मसीहा की शांति के बारे में सीखते हैं, that his peace will be everlasting. कि ये जो शांति होगी ये हमेशा की होगी. Chapter 9 and verse 7 says, और यशायाह के 9 अध्याय की 7वीं आयत में लिखा है, when he declares him as the Prince of Peace, जब वो उनको शांति का राजकुमार कहते he हैं, further says, वो आगे बोलते हैं of the increase of his government कि उनकी जो प्रभुता है and of his peace, और जो उनकी शांति है, there will be no end. वो कब बढ़ती रहेगी, उसकी शांति का कभी अंत ना होगा. It is not temporary, ये क्षण भर के लिए नहीं है, but remember, he is the everlasting Father. लेकिन आप याद करें वो अनंत काल का पिता है. And so his peace will also, and his government will also be forever. इसलिए उनकी शांति और उनका राज्य हमेशा का होगा. See, in his kingdom, when he establishes on this earth, जब वो अपने इस राज्य को इस पृथ्वी पर स्थापित he करेंगे, says he will extend its boundaries and his government to the ends of the earth. वो कहते हैं कि वो इसका को पूरी पृथ्वी पर बढ़ाते जाएंगे. And it will encompass everything that you can imagine on this earth, and that will be forever. और जो कुछ भी आप सोच सकते हैं सुख समृद्धि और शांति की बात,
वो इस पूरी पृथ्वी पर हमेशा के लिए होगी। And further it says in that same verse, और आगे इसी आयत में बोलते हैं, it doesn't depend on Israel. ये इस्राएल पर निर्भर नहीं है, It doesn't depend on you and me. ये मेरे और आपके ऊपर भी निर्भर नहीं है, But the zeal of the Lord shall accomplish it. लेकिन ये परमेश्वर की जो जोश है, धुन है, वही उसको पूरा It करेगी। is God who has planned it. ये परमेश्वर ने योजना बनाई है। The Prince of Peace is God himself. Remember, he is mighty God. और ये जो शांति का राजकुमार है, ये परमेश्वर स्वयं है, क्योंकि वो पराक्रमी परमेश्वर है। And his zeal is for peace and harmony on this earth. और उनके जो ये धुन है, उनके जो जोश है, वो इस पृथ्वी पर सुख और समृद्धि के लिए और शांति के लिए है। And his zeal is the one, not any particular nation, not any particular tribe, not any particular people that will establish it, but it is the zeal of the Lord that will establish this peace on this earth. और ये परमेश्वर की धुन है, आने वाले मसीहा की ये धुन है कि वो इस बात को शांति के द्वारा पूरा करेगा। And those who trust him और जो भी उस पर भरोसा करते हैं, will let him be the governor of their life. They will come under his government. और वो अपने आप को उसके अधिकार में डाल देंगे, उसके अधीन हो जाएंगे। Let us give him the increase of his government in our lives, in our society, in our churches, friends, these days. इन दिनों में आइए हम उसकी प्रभुता को अपने जीवन में और शांति में पूरी तरह से उसके अधीन हो जाएं। And then he will lead us into perfect peace. और तभी वो हमको एक परफेक्ट जो शांति है उसमें ले जाएंगे, That will be everlasting. जो हमेशा के लिए होगा। So my dear friends, throughout this Advent season, तो मेरे मित्रों, इस पूरे आगमन के इस सीजन में do you find yourself in the impossible situations often? क्या आप कभी-कभी अपने आप को बड़ी असाधारण और जो चीज हो नहीं सकती उस स्थिति में पाते हो? Do you find you are very ordinary and you are looking for something extraordinary? और आप अपने आप को बड़े सामान्य समझते हैं और आप कुछ असामान्य बात को ढूंढ रहे हैं। Something supernatural and divine that will come into your impossible situation. कुछ ऐसे दैवी बात आपके जो असाधारण ना होने वाली ना संभव होने वाली बात में उसमें आ सकती Then है। I have good news for you. मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। We have a wonderful counselor. हमारे पास एक अद्भुत युक्ति करने वाला है। Are you in need of wisdom and counseling today? क्या आपको बुद्धि और युक्ति की जरूरत है? Then his name is Counselor. तो उसका नाम है युक्ति करने वाला। Are you feeling weak and disheartened and needing strength today? क्या आप अपने आप को कमजोर और ताकत चाहते हैं अपने जीवन में? Then let me introduce to you whose name is Mighty and Strong. तो मैं आपको एक परिचय देना चाहता हूँ एक पिता परमेश्वर से जो पराक्रमी है। Are you feeling hopeless in your situation? क्या आप आशा रहित हैं अपनी किसी परिस्थिति में? Are you continuing to live in discomfort and are in need of some soothing words? क्या आप कुछ बड़े सुंदर कान में लगने वाले शब्दों को सुनने के लिए आप चाहते हैं? Then the good news is तो खुशखबरी है, one of his names is Everlasting Father. तो एक खुशखबरी है कि उनका नाम है अनंत काल का पिता। And if you find yourself in some trouble, और यदि आप किसी परेशानी में अपने आप को जानते हैं, perplexed with your life situations, अपने जीवन की परिस्थिति में बड़े कंफ्यूज है, परेशान है, looking for directions, आप डायरेक्शन चाह रहे हैं, are you confused by your situations? क्या आप अपनी परिस्थिति से कंफ्यूज है, दिशा चाहते Are हैं? you looking for comfort and peace in your life? क्या आप अपने जीवन में आराम और शांति चाह रहे Then हैं? you have the Prince of Peace. तो आपके पास शांति का राजकुमार है। In and through Jesus Christ alone, all of these names are fulfilled. All of these prophecies come to fulfillment in and through Jesus Christ. यदि आपको सुकून और शांति चाहिए तो प्रभु यीशु मसीह जो शांति का राजकुमार है उसके द्वारा, केवल उसके द्वारा आपको मिल सकती है। ये सारे नाम जो पूरे हुए केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरे हुए। All of these now also can be fulfilled in your life if you put your trust in this Lord Jesus Christ, the Prince of Peace. और ये सारे नाम आपके जीवन में संपूर्ण हो सकते हैं यदि आप
प्रभु यीशु मसीह पर पूर्ण विश्वास करेंगे। So whenever you are going through all these तो issues, जब भी आप इन सब बातों से होकर गुजर रहे हैं, let us call to the wonderful counselor, mighty and strong God, eternal Father and the Prince of Peace. तो आइए हम पुकारें उस अनंत अद्भुत युक्ति करने वाले के लिए, और उस पराक्रमी परमेश्वर को हम पुकार सकते हैं, अनंत काल के पिता को पुकार सकते हैं, और जो शांति का राजकुमार यीशु है। And I assure you, He will fulfill each one of them in your life personally. और मैं आपको आशा दिलाना चाहता हूँ कि ये सारे नाम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपके जीवन में पूरे होंगे। May the Lord bless us through these words. परमेश्वर हमें इन सब शब्दों के द्वारा आशीषित करें। Let's pray. आइए प्रार्थना करें।